guys, Hakuna Matata. This is Harsh, your maths master teacher at Vedantu, and we are continuing our ICSE 10th series, and we have covered two sessions already of this chapter, linear inequations, and today we are going to learn how do we solve these linear inequations, right? How are you guys? I hope you are taking care of yourselves. सही रह रहे हो, safe रह रहे हो, right? तो शुरू करें. But before that, let me tell you guys, Vedantu Pro subscription is very, very beneficial. Why don't you guys try it out? You just have to click on the link given in the subscription box below and select your grade, select your target, whether CBSE or ICSE, right? And the third step is get subscription, guys. And what you will get? Everything, right? So you will get unlimited live interactive classes, test series, notes, PDFs, assignments, everything, even the analysis कि कहाँ पर weak हो, कहाँ पर strong हो, कहाँ पर work करने की ज़्यादा ज़रूरत है, everything will be taken care of, guys. So I would suggest you to take this 6 months pack because 1 month का fee बहुत ही कम है. इतना offline fee आप मतलब इतना तो ऑफलाइन में भी नहीं देना पड़ता, राइट? सो ट्राई इट आउट, यू विल बी अमेज्ड बाय द अमेजिंग टीचर्स एंड मजा तो आने ही वाला है. प्रो बन जाओगे पक्का पक्का. तो आ जाओ यार, पूरा करिकुलम कंप्लीट करवाया जाएगा. सो मूविंग ऑन टू आवर सेशन, we will discuss how to solve the linear inequations. तो ये थोड़ा सा steps है, simplify करो दोनों sides को, right? So like terms को collect करना है, ये हमें छोटी छोटी चीजें हैं ऑलरेडी पता है, जब क्वेश्चन के साथ समझाऊंगी तो अच्छा समझ आएगा, right? So remove the fractions remove करो by multiplying both sides by an appropriate factor, this we already know. And then variable terms को एक side पे, constants on the other side, this you also know, right? So let's try to solve these inequations. So the first inequations on your screen is, जिन्होंने ये chapter कर लिया है, try to solve it with me. जिन्होंने नहीं किया है, एक question का solution देखो and then second question से खुद करो मेरे साथ, right? स्टार्ट करें. तो हमारे पास लीनियर इनइक्वेशन है. इन्होंने बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशन एंड राइट द सोल्यूशन सेट भी बताना है कि क्या है एंड इवन रिप्रेजेंट भी करना है ऑन द नंबर लाइन. तो फर्स्ट, बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली दैट व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, राइट? सो स्टार्टिंग विद the linear inequation, we are getting so it is minus 3x minus 7, 15 minus 7x is greater than x plus 1 by 3. This is the linear inequation and the replacement set or the domain is given real numbers, R for real numbers, and this is also very important point. I will tell you when to use this point, right? So start करते हैं. अगर ऐसा कुछ हो तो आपने क्या करना है, सेपरेट कर लेना है. इन दोनों को अलग से सॉल्व करना है एंड इन दोनों को अलग से सॉल्व करना है. देखो कैसे. तो यू विल ब्रेक इट एट as like this, minus 3x minus 7 is greater than or equal to 15 minus 7x. And you can say this 15 minus 7x is greater than x plus 1 by 3. समझ में आया? ये वाला पार्ट यहाँ पर लिख लिया है मैंने एंड ये फर्स्ट टू वाला पार्ट यहाँ पर लिख लिया है, राइट? इनको अलग अलग से सॉल्व करो तो क्या आएगा, देखो ब्रैकेट खोलो, ये आएगा minus 3x plus 21 is greater than equal to 15 minus 7x. And what are you getting? Variables like terms on the one side. So minus 3, I am taking minus 7 here, right? इधर लेके जा रहे हैं तो वो plus 7x हो जाएगा. साइन को वैसा ही रखना है until or unless you are multiplying the linear inequation with minus 1 or minus of or negative number, right? Otherwise sign will remain same. Okay, so here you are doing 15 minus 21. So what are you getting here? You are getting 4x and here you are getting, what are you getting? 6, right? तो यहाँ पे आपका आ रहा है -6. तो x बन गया आपका greater than or equal to -6 by 4, or you can even simplify it further and you can say x is greater than or equal to -3 by 2. So एक हमारे पास ये आ गया है, तो इसको ध्यान में रखना है. Now let's solve the other portion. ये वाला portion solve करते हैं. तो it is 15. अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 3 है ना, तो मल्टीप्लाई कर दूं.
3 को मतलब multiply the linear inequation by 3. So what do you get here? You will get 3 into 15 minus 7x and here greater than x plus 1. What are you getting? 45 minus 7 3 is 21x greater than x plus 1. x वाली टर्म्स को एक साइड ले जाओ तो यहाँ पर आ जाएगा 44 इज ग्रेटर देन, देखो साइन मैं वही रख रही हूँ तो साइन यहाँ पर इधर आ जाएगा हमारे पास 44 इधर ले आए उधर लेके जाओ तो 22x आ जाएगा राइट बिल्कुल बिल्कुल 22x आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई, देखो साइन वैसा ही रखना है, x को यहाँ है तो यही रहने दो और इसको इधर ले आओ नीचे तो ये आ जाएगा बेसिकली 2 राइट। तो एक हमारे पास ये बना। अब जब आपके पास दोनों आपने सॉल्व कर लिए सेपरेटली, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब मैं आपको तो बताती हूँ कि क्या करना, थोड़ा सा मुझे इरेज करने दो ताकि मैं अच्छे से बता सकूं। देखो अगला स्टेप क्या करना है बेटा, यहाँ पे मैं ब्लू पेन से सॉल्व करती हूँ, ठीक है लाइट ब्लू से करते हैं राइट। तो अब क्या करना है, आपको इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है, x ऐसे बना लो, यहाँ पर क्या आएगा सोचना है और यहाँ पर क्या आएगा। अब we know that x is greater than equal to minus 3/2, मतलब x is greater than equal to minus 3/2 right, and x is less than 2, x is less than 2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरी तरह भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो -3/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। मतलब तो सेम ही है कि x कहां से कहां वेरी कर रहा है, x इज लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। देखो जहां पर ये खुला हुआ है ना फेस, जहां पे वो खुला हुआ है इधर वाला पार्ट बड़ा होता है, ये जो बंद वाला पार्ट है ये छोटा होता है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। तो हम ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलते हैं, ये वाली फॉर्म लेके चलते हैं राइट। तो इससे अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो क्या आएगा, पहले तो सोल्यूशन सेट बना लो। तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा वो मुझे बताओ, सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। देखो we know that x belongs to R, we know that right, तो you will write x belongs to R and क्या पता है कि x वेरी कर रहा है -3/2 से लेके 2 तक राइट। अब इसका मतलब क्या है, आंसर क्या आएगा, x की वैल्यूज -3/2 से 2 के बीच में लाई करेंगी, तो दिस बिकम्स द सोल्यूशन सेट। एंड नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन, सो यू विल ड्रॉ अ नंबर लाइन एज आई ऑलवेज टोल्ड यू कि नंबर लाइन को हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो क्या करोगे आप, इसको भी आप पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो तो ये 1.5 आ जाएगा राइट। तो यहाँ पे -1 ले लो, यहाँ पे -2 ले लो, तो यहाँ पे कहीं आपका 1.5 आ जाएगा राइट। यहाँ पे 0 आ गया, देन 1 देन 2 सिंपली। अब क्या करना है, जो मैंने आपको ब्लैक डॉट एंड हॉलो डॉट का कॉन्सेप्ट बताया था, व्हेन डू वी यूज ब्लैक डॉट, जब वो नंबर इंक्लूडेड होता है, व्हेन डू वी यूज हॉलो डॉट, व्हेन द नंबर इज नॉट इंक्लूडेड। एंड यहाँ पर देखो, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पर देखो कि वी हैव गिवन कि x जो है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2, मतलब ये इंक्लूडेड है, इक्वल भी है, तो मैं इसको डार्क वाली डॉट से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। नाउ व्हाट अबाउट दिस 2, x इज लेस देन 2 बट x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, मतलब ये 2 के लिए आई विल यूज द हॉलो सर्कल एंड ऑल द वैल्यूज बिटवीन बिकम्स आवर सोल्यूशन। समझ में आया, समझ में आया, इजी है, जस्ट सॉल्व करो, ये रेंज फाइंड करो कि x की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है एंड देन प्लॉट इट ऑन द नंबर लाइन, वेरी वेरी इजी। तो आप सोल्यूशन भी देख सकते हो, यू कैन लुक एट द सोल्यूशन, सेम ही है, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये अब मेरे साथ खुद ट्राई करो बेटा, खुद ट्राई करो इसको। अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x व्हिच सैटिस्फाई द इनइक्वेशन, वही करना है, वैल्यूज ऑफ x फाइंड आउट करनी है व्हिच सैटिस्फाइज द इनइक्वेशन एंड व्हाट इज द डोमेन सेट गिवन, व्हाट इज द रिप्लेसमेंट सेट हियर, this is the replacement set that is x belongs to integer, right? So this is the replacement set that is given to us and how do we, okay let me change the color now। अब बस इसको सॉल्व भी तो करना है, तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 5x + 4 लेस देन 11, तो वही करना है, पहले इन दोनों को ले लो और इन दोनों को ले लो, उठा लो फटाफट से। तो ये बन गया 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 5x + 4 एंड इधर बन जाएगा एंड
5x प्लस 4 लेस देन 11। तो क्या आया हमारे पास यहाँ पर आ गया x वाली एक तरफ ले जाओ, तो ये इधर ले जाते हैं, तो ये बन गया -5 -4 लेस देन इक्वल टू 5x -2x, तो ये बन गया -9 लेस देन इक्वल टू 5 -2 इज 3x। तो बेसिकली ये इसको ऐसे ही रहने दो, x को इधर ही रहने दो, कंफ्यूजन नहीं होती ना, तो इनइक्वालिटी का साइन साथ के साथ लेके चला करो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -3, तो एक हमारा ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा, तो दूसरे में तो सिंपल ही है कि 11 -4 करना है, तो 5x क्या आ गया हमारे पास, 7 आ गया, x क्या आ गया हमारे पास, बेसिकली 7/5 आ गया, एक ये आ गया, ठीक है जी। तो ये चीज आई। अब क्या करोगे, सिंपल सी बात है, वही चीज फॉर्मुलेट करोगे कि x कहाँ कहाँ से लाई कर रहा है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू तो -3, बट x इज लेस देन 7/5। आप इसको उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्या कहते हैं, पॉइंट्स में, तो ये आ जाएगा 1.4। समझ में आया, समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो बस ये आ गया हमारे पास। तो सोल्यूशन सेट क्या बना, अब ध्यान में क्या देना है सोल्यूशन सेट देखने के लिए, यू विल से कि मैम x belongs to integer and we have given this इन इक्वेशन, जो हमारी 1.5 यहाँ पे 1 पॉइंट वो लिख लो 1.4, ठीक है। तो व्हाट हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना, हमें इंटीजर्स लेनी है, तो -3 हो सकता है क्योंकि इक्वल टू भी है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, देन 0 हो सकता है, देन 1 हो सकता है। क्या -1.4 हो सकता है, नहीं, बिकॉज 1.4 इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा सोल्यूशन सेट। समझ में आया, बस अब कुछ नहीं करना, इसको आपने नंबर लाइन पर करना है रिप्रेजेंट। लेट्स रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने जगह बना ली है, तो यहाँ पर हम नंबर लाइन बना देते हैं, ठीक है। एंड जब भी आप नंबर लाइन बनाओगे, ये एरोस पुट ऑन करना बहुत जरूरी है, इसके भी मार्क्स कट सकते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं सेट में, -1 है, -2 है, -3 है, एंड हमारे पास 1 है, 2 है, नहीं 2 नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये है, राइट। तो हमारे पास जो सेट में वैल्यूज आएंगी दैट विल कम आउट टू बी -3 -2, ऐसे इसको डार्क सर्कल से, डार्क डार्क डार्क, राइट। तो 1 तक आएगा, राइट। सो दिस विल बिकम आर नंबर लाइन, ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब आप बोलोगे मैम आपने रेंज क्यों नहीं शो करी, क्योंकि बेटा रेंज में हमें सिर्फ इंटीजर्स शो करने हैं, क्योंकि इनके बीच में जो भी वैल्यूज लाई करेंगे दे विल नॉट बी इंटीजर्स। अगर रियल नंबर्स का सेट होता तो हम पूरा ही डार्क कर देते, बट रियल नंबर्स का नहीं है, इंटीजर्स का है, सिर्फ इंटीजर्स इंटीजर्स को शो किया, दैट इज आवर सोल्यूशन सेट। इज इट क्लियर टू यू गाइज, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर भी देखो ऐसा ही है, यू कैन चेक आउट द सोल्यूशन। एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर द बेटर क्लैरिटी, राइट। सो लेट्स डू इट, राइट। तो इसमें क्या है, फ्रैक्शंस देख के घबरा नहीं जाना, बस एलसीएम ले लेना, कुछ नहीं है। तो अब मैं दोबारा नहीं लिख रही, तो यहां से देखो ये दो उठाओ एंड फिर ये दो उठाओ। तो पहले हम उठाते हैं -3 लेस देन -1/2 -2x/3, राइट। और एंड लिख लो साथ में, -1/2 -2x/3। फटाफट मेरे साथ करो, फटाफट से मेरे साथ में करो। एंड ये भी भूलना नहीं है कि रियल नंबर्स का डोमेन दे रखा है, रिप्लेसमेंट सेट दे रखा है, राइट। तो बस फटाफट से सॉल्व करो इसको। क्या हुआ, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, तो 6 आ जाएगा, 2 3 6 -3 3 2 6 -4x। एंड यहाँ पर इसको चलो बाद में करेंगे, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 3 18 आ गया, -3 -4x, तो सॉल्व कर दो, उधर ले जाओ इसको, तो ये बन गया -18 + 3, एंड यहाँ पर आ गया -4x, ऐसा ही था। तो क्या बन गया, ये बन गया -15, एंड यहाँ पर कुछ आ गया हमारे पास -4x। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि अभी हम चेंज नहीं कर, अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि बेटा मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि दोनों साइड माइनस है ना, तो माइनस हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से या फिर किसी भी नेगेटिव नंबर से, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पर क्या बनेगा, 15 अब ग्रेटर देन हो जाएगा 4x। समझ में आया, तो x की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली 15/4। ये चीज समझ में आई,
आई ये चीज समझ में, एक ये बन गया। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करूं तो इसको भी सही से सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा हमारे पास। तो -3 -4x अपॉन 6 इज लेस देन इक्वल टू 5/6, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो तो -3 -4x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इसको उधर ले जाते हैं, 4x को इधर ले जाते हैं एंड 5 को इधर ले आते हैं तो -5 6 7 8, तो -8 हो जाएगा। बेसिकली x हमारा आ जाएगा -2, राइट। ठीक है, ये समझ में आया। अब वही चीज करनी है, वही स्टेप्स है हमारे, तो दोबारा से मुझे थोड़ा सा इरेज करके जगह बनाने दो। ठीक है, तो हम करते हैं वही चीज। अब इन इक्वेशन में पुट ऑन करना है बस x कहाँ कहाँ से लाई करता है। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड x इज लेस देन 15/4। ये आया, ये आया। अब रियल नंबर्स है मतलब बीच वाले सारे नंबर्स होंगे, ये पूरा हम सेट लेंगे, राइट। तो इसमें आपने सिंपली नंबर लाइन में क्या करना है, सिंपल सी बात है, प्लॉट कर दो इनको। 0 है, ये -1 हो गया, -2 हो गया। इधर देखो इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो तो ये बन गया 4 3 12, देन हमारे पास आ गया 7 5, राइट। 3.75 आ गया, तो मतलब 1 2 एंड 3 एंड यहाँ कहीं पे 4 के पहले यहाँ कहीं पे ये वाला नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको तो अब बस सेट में क्या आएगा, डिफरेंट नंबर से देखते हैं। तो सिंस x जो है, देखो ये x और -2 के बीच में ये वाला साइन है ना, इक्वल टू का, लेस देन और -2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है ना, तो ये इंक्लूड होगा। इसका मतलब है -2 तो भाई इंक्लूड हो रहा है। पर अगर हम इसकी बात करें तो 3.75 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आएगा हॉलो सर्कल और बीच वाली सारी वैल्यूज हमारी आ जाएंगी सोल्यूशन सेट में, तो उसको हमने डार्क कर देना है। तो ऐसे आपने नंबर लाइन बनानी है। इज इट क्लियर गाइस? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो दैट वाज ऑल, ऐसे हमने करना है। सो दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये खुद करो, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दो कि आपको समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो बताओ, राइट। सो इससे आप अपनी किसी भी बुक में से कोई भी बुक उठा लो, आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओगे इजीली, बिकॉज हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, मैंने जितने भी पीछे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ये सारे आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से उठाए हैं। तो जस्ट आप प्रैक्टिस करो, कोई भी बुक उठा लो, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, राइट। So that was all for today. I hope you liked the video, and if yes, why don't you hit the like button? It matters to me. एक like matter करता है मेरे लिए। And even share the video with your friends. Subscribe to my channel जो बच्चे नए हैं, ठीक है। And also I want to remind you again, ICSE का full on course हमारे वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको मिल जाएगा। करिकुलम एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, सब चीज का ध्यान रखा जाएगा। इवन monthly fees is very less, so just try it out guys, just try it out. So bye bye guys, take care, Hakuna Matata and be safe.